Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today we are going to talk about the circulatory adjustment after birth. Neonatal circulatory adjustment we are going to talk. But before that, one hadith I would like to quote. In previous lecture I सलाम करने के मुतालिक मैंने हदीस पढ़ी थी. एक और हदीस अबाउट उसी मुतालिक है. अल-बादिउ बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र. ये बहकी शरीफ की रवायत है कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी होता है, तकब्बुर से बच जाता है. और आप देख लें, किब्र एक को तोड़ने का एक तरीका है. आप सलाम करें, आप अपनी बड़ाई अब तवाज़ो इख्तियार कर रहे हैं, इंकिसारी इख्तियार कर रहे हैं सलाम में पहल करके, तो ये तकब्बुर काट है. तो तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है, तो तकब्बुर से बरी हो जाता है. जो सलाम में पहल करने का आदी हो ना, अल्लाह पाक उसको तकब्बुर से महफूज रखता है. जो शायद बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, बिदअत भी बहुत बड़ा गुनाह है. तकब्बुर अल्लाह की बड़ाई, किबरियाई सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है. तकब्बुर भी अल्लाह को सख्त नापसंद है. तो अल्लाह पाक हमें समझ, आसान सा नुस्खा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सलाम में पहल करो, आप तकब्बुर से महफूज होते चले जाओगे. अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. So we are going to talk about the circulatory adjustment after birth. The fetal circulation is very, very different from the adult circulation. As you know, there are no lungs in fetus, no active lungs. Inspiration, expiration, oxygen supply, carbon dioxide elimination, no role of the lungs in that. Blood is oxygenated from the placenta, and carbon dioxide is eliminated into the placenta. So there is a field of placental circulation area. Placental circulation is there. Blood is going from the fetus into the placenta, and it is coming back through the vessels into the fetus again. And how this is arranged, we are going to see. Yeah, we have seen this ayat पहले हम पढ़े हुए, इसलिए मैंने इस आयत को आगे कर दिया. फिटल लाइफ टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, जैसे हमने कहा कि इंडिपेंडेंस लाइफ है, तो उसकी चेंजेस जो हमने देखनी है, दैट इज दी, वो स्लाइड हमने पहले देखी हुई है. ये स्लाइड सारी इसलिए मैं जल्दी से गुजार दिया. पिछले लेक्चर में ये स्लाइड हमने देख ली थी. तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया था. आज सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लेंगे. और अगर मेरे ख्याल में ये काफ़ी अब बड़े टॉपिक्स यही हैं, बाकी आप किताब में पढ़ सकते हैं. So circulatory adjustment, fetal circulation system is converted into the adult circulatory system. वो क्या चेंजेस है वो हम इकट्ठी करेंगे. Onset of the pulmonary circulation, पहला काम तो ये है ना, there is no active pulmonary circulation. blood lungs में काम ही नहीं हो रहा ऑक्सीजनेशन का, तो उधर ब्लड क्यों जाए? सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए जो ब्लड चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए उतना ब्लड जाता है. लेकिन एक्चुअली pulmonary field opens after the inspiration. So the onset of pulmonary circulation occurs because of when the lungs open, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया. When the lungs open, all the blood vessels which were kept collapsed and bund, high resistance, very high pressure और बहुत resistant vessels थे, blood was not flowing in those high resistant vessels, collapsed vessels में. But when the lungs open, the blood vessels are also open, resistance is reduced, and the blood flow starts in the lungs. So onset of the pulmonary circulation, पहला काम तो ये होना है. Then the changes in the arterial pressure, ये भी हम देखेंगे. Arterial pressure in the pulmonary field, very high resistance, there is high pressure. And the systemic field, there is low pressure as compared to the pulmonary pressure in fetus. लेकिन adult में तो we know there is high pressure side is the systemic circulation side. So changes in the arterial pressure, that is in the pulmonary circulation में भी changes आई हैं, and systemic circulation में भी, दोनों में changes आई. आगे हम we are going to see that. Then changes in the oxygen saturation as well, ये भी changes होंगी. Oxygen saturation we had discussed probably when we were talking about the placental diffusion of the oxygen and carbon dioxide.
we saw that the oxygen saturation in the fetal blood is only 30 millimeter of mercury. Partial pressure of oxygen in the oxygenated blood of the fetus is only 30 millimeter of mercury. और उस पर रीजन हमने डिस्कस की थी कि इवन एट 30 millimeter of mercury this is sufficient for the supply of oxygen to the fetal tissues. वो कैसे पॉसिबल था वो डिस्कस किया था हमने. So this now the adult, that is 90 millimeter of mercury, 92, 94 millimeter of mercury partial pressure oxygen. So changes in the oxygen saturation, they take place. And this is again a very important change, that is hemoglobin F is gradually replaced by the hemoglobin A. उसका hemoglobin F का भी हमने देखा, जो उनकी चेन डिफर करती है, बीटा चेन के नहीं होती उसमें, अल्फा चेन, तो बीटा चेन रिप्लेस होती है, आती जाएगी इसमें hemoglobin A में. ये आपने पढ़ा हुआ है, ब्लड में पढ़ा होगा शायद. So first, this is the fetal circulation. This is the diagram showing you the fetal circulation. That is the एआर्टा है. दिस एआर्टा जो ब्लड फीटस का हार्ट पंप कर रहा है, अभी हम देखते हैं कैसे पंप कर रहा है. एआर्टा में जो ब्लड आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अम्बलाइकल आर्टरीज आर गोइंग टू द अम्बलाइकस. प्लेसेंटा को जा रही हैं ये दो अम्बलाइकल आर्टरीज, और फिर अम्बलाइकल वेन वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ आ रही है. That passes through लिवर में, लिवर को सप्लाई करने के बजाय लिवर मेच्योर कम होता है, उसमें ब्लड कम जाता है. देयर इज द डक्टस विनोसिस होता है, ये आर्ट्रियोसिस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है. दिस इज डक्टस विनोसिस. डक्टस विनोसिस, ये डायग्राम में डक्टस आर्ट्रियोसिस लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग. तो डक्टस विनोसिस के जरिए इट जॉइन द इंफीरियर वेना केवा, एंड इंफीरियर वेना केवा इज ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम. इसका एरो देखें, राइट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द फोरामेन ओवेल. ये डायग्राम में दिस इज फोरामेन ओवेल. This oxygenated blood entering into the right atrium, इसकी डायरेक्शन ऐसे है कि there is opening between the right atrium and left atrium which is known as foramen ovale. ये लिखा हुआ है, this is foramen ovale. So this oxygenated blood mostly directed to that and it goes through the foramen ovale to the left atrium. और upper part of the बॉडी से, हेड एंड नेक से जो ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा इज ब्रिंगिंग द ब्लड, एंड इसकी डायरेक्शन नीचे जा सकता है, इसका भी ब्लड कुछ उधर जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नीचे आने की, इनटू द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज दिस और इसकी फ्लो उधर है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड पे ज्यादातर मिक्स होते हैं, तो बहुत ब्लड नॉट मिक्स, लेकिन मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो की डायरेक्शन ऐसे है कि वो ज्यादातर इट विल गो टू द लेफ्ट एट्रियल साइड फोरामेन ओवेल के थ्रू, और सुपीरियर वेना केवा से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है दैट डायरेक्टेड टू दी थ्रू दी वो क्या कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए से इट एंटर्स इनटू दिस left right atrium, right ventricle. Then this right ventricle, when it pumps the blood, किधर पंप करे? It will pump the blood into the pulmonary trunk, pulmonary artery, बड़ी आर्टरी में, वो तो आगे lungs बंद पड़े हैं. This blood is pumped into the pulmonary artery. Initial part of this is the pulmonary artery, but it will not go into the lungs. ये obliterated blood vessel, lungs ऐसे खुले नहीं है, they are collapsed lung, so no blood from the pulmonary artery goes into the lung. वो बंद पड़े हैं, very high resistance is there, blood cannot go there, इतना ज्यादा resistance है, blood vessels are collapsed. So this blood, instead of going to the lungs, it passes, this is ductus arteriosus. Yes, ये जो ductus arteriosus ये लिखा हुआ ये गलत है, this is ductus arteriosus. मेरे ख्याल में ये गाइटन की डायग्राम है, ये गलती यहाँ पर नजर आ गई. So through ductus arteriosus, this deoxygenated blood enters into this. So there is कौन सी abnormalities हमने देखी? Blood is not going to the liver. It is passing through the ductus venosus, एक ductus venosus जो adult में नहीं होता, and ये जो deoxygenated blood, it is not going into the lungs. There is the vessel which is known as ductus arteriosus.
It is going into the aorta again. Aorta में जा रहा है, लंग में नहीं गया, निकल के aorta में जा रहा है. Aorta के अपर पार्ट ऑफ द ब्लड बॉडी को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के बाद ये शामिल होता है इनटू डिसेंडिंग एआर्टा में, ये शामिल हो जाएगा. तो ये चीजें दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन एडल्ट्स. एडल्ट्स में ये सारी चीजें, डक्टस वेनोसिस शुड क्लोज, foramen ovale should close, and the ductus arteriosus should close, and the lungs should open so blood can go into the lungs, and the systemic circulation has to be readjusted. So these changes we are going to take place. This is again the diagram, वो इसी तरह की diagram है. That is ductus venosus के जरिए से placenta से आने वाला blood is passing through the ductus venosus and entering into the right atrium, और इससे ductus ऊपर से आने वाला blood through ductus arteriosus is rejoining the aorta. ये diagram है, ये animated picture है, I have taken from somewhere from Google से हमने ये उठाई हुई है, picture है somewhere वहाँ से उठाई है. This is animated diagram के oxygenated blood is coming through the ductus venosus, it is joining the deoxygenated blood, it is entering into this, and इसकी direction ऐसी है, it is going through the foramen ovale to the left side, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप, इट इज पंप्ड इनटू द एआर्टा, और एआर्टा में ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है टू दिस, और लंग एंड ये जो दूसरा ब्लड है अपर पार्ट से आने वाला, इट इज कमिंग इनटू दिस एंड इट इज एंटरिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड इट इज पंपिंग टू द पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक का ब्लड मोस्टली इट गोज टू द एआर्टा. इधर जाने वाला कम है, यहाँ पे काफी दिखाया हुआ है, लेकिन इधर जाने वाला ब्लड कम. सो दैट इज द फीटल सर्कुलेशन बिफोर बर्थ. ऐसे now this has to be converted into adult circulation. क्या क्या जरूर बंद, ductus arteriosus should क्लोज होना चाहिए, डक्टस विनोसिस बंद होना चाहिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होनी चाहिए, और सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर शुड इंक्रीज. इसको हम देखेंगे. सो क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवेल and closure of the ductus arteriosus, which is by shunting the blood from the pulmonary artery into the aorta, and closure of the ductus venosus, which is shunting the blood instead of going to the liver, it is bypassing the liver and it is entering into the inferior vena cava, and the decreased pulmonary resistance, opening of the lungs, and the decreased pulmonary pressure, वो pressure पहले ज़्यादा था वो कम होगा, और systemic pressure resistance both should increase. ये important changes we are going to talk about. So इस डायग्राम की आई थिंक जरूरत नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. यहाँ पे लिखा हुआ है डक्टस आर्टरियोसिस का बंद हो गया, लिगामेंटम बनती है, वो आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह. ये भी हम बात कर चुके. दैट इज दी डक्टस, ये दो ब्लड जो पंप कर रहा है फ्रॉम एंटरिंग हेयर, इट इज गोइंग टू फोरामेन ओवेल, दूसरी साइड पे जाके जब यहाँ से पंप होता है तो ये वाला ब्लड ये डक्टस आर्टरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड इट जॉइन दी पल्मोनरी एआर्टा को दोबारा जॉइन करता है. लॉस ऑफ प्लेंटल सर्कुलेशन इंक्रीजेस द सिस्टेमिक प्रेशर. पहला काम तो ये करें. ब्लड वाज गोइंग, फीटल ब्लड वाज गोइंग एआर्टा से या उसकी ब्रांचेस से, बड़ी ब्रांचेस से जो ब्लड जा रहा था टू इनटू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बंद कर दिया. इसका मतलब है कि उस ब्लड को उधर जाने से रोक दिया. दैट विल इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड. सो द लॉस ऑफ प्लेसेंटल सर्कुलेशन इंक्रीजेस द सिस्टेमिक प्रेशर. वो फील्ड खत्म हो गया, आपने उधर जाने से ब्लड रोक दिया, तो ऑल द ब्लड इज इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सो प्रेशर विल राइज इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो देयर विल बी opening of the lungs, right atrial pressure will fall. पहले there is reduce in the right atrial pressure because पहले pressure क्यों ज्यादा था? right ventricle जिस वेसल में पंप कर रहा था दैट वाज हाई प्रेशर. पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, राइट वेंट्रिकल का भी प्रेशर बहुत है, राइट एट्रियम की भी प्रेशर बहुत ज्यादा था. दैट्स व्हाई दिस ब्लड वाज गोइंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम एज वेल फ्रॉम द फोरामेन ओवेल. तो राइट एट्रियल प्रेशर जो ही लंग्स ओपन करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, पल्मोनरी साइड वाला प्रेशर फॉल्स, इट रिड्यूसेस द राइट एट्रियल प्रेशर, सो देयर इज रिड्यूस राइट एट्रियल प्रेशर. So loss of extensive placental circuit will also lead to increased systemic pressure. ये अभी हमने बात करके, systemic pressure बढ़ रहा है और pulmonary pressure is falling. Onset of ventilation, this causes decreased hypoxia and increased vasodilation. ये भी एक cause है.
when there is oxygenation होने ज़्यादा blood flow हो जाएगा. That is the oxygen in the systemic side. When there is hypoxia, onset of ventilation will reduce hypoxia. Reduce hypoxia का क्या मतलब है? Oxygen will increase. This increase, reduce hypoxia will cause vasodilatation. This is something wrong. ये onset of ventilation, pulmonary lungs जब open करेंगे, it will cause the increased oxygen saturation. Increased saturation, carbon dioxide elimination, so vasoconstriction on the most of the will occur in the most of the systemic blood vessels, and this will cause the increased pressure inside the systemic circulation. डिक्रीज इन पल्मनरी रेजिस्टेंस. हाँ, ये काम तो अगर वेजोडाइलेशन पल्मनरी साइड पे हो रही, दिस विल, आपको पता है पल्मनरी ब्लड वेसल का इफेक्ट ऑक्सीजन का अपोजिट है टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक में हाइपोक्सिया कॉजेस वेजोडाइलेशन एंड इन द पल्मनरी साइड दिस विल कॉज द वेजोकंस्ट्रिक्शन. सो देयर इज डिक्रीज इन द पल्मनरी रेजिस्टेंस विल अकर. सो इंक्रीज इन द पल्मनरी वास्कुलर फ्लो, 8 to 10 fold increase blood flow. Simple बात ये, opening of the lungs will open the blood vessel and the oxygenation of the lungs will cause the more blood flow in the oxygenation. जितनी जहाँ पे lungs में आपने पढ़ा हुआ है, जितनी ज़्यादा oxygenation aeration होगी वहाँ पे vasodilatation होगी, blood flow वहाँ पे बढ़ेगा. तो opening of the lungs increases the oxygen level in the, it causes the vasodilatation in the pulmonary side and it causes the more blood flow to the pulmonary side. दूसरी साइड पे that is the carbon dioxide elimination quick हो गया है, that will cause the vasoconstriction in the systemic side and this will cause increase the pressure on the systemic side. Rise in oxygen content, ये तो हम बात कर चुके हैं. Onset of ventilation increases the oxygen content and this causes the decreased pulmonary resistance and more blood flow in the pulmonary circulation. First breath, lung expands, vasodilatation occurs, and in pulmonary vascular resistance, it's 80% decrease. वो जो हमने कहा, simply opening of the lungs. Lungs के open करने में resistance of the blood vessel is reduced. Reduce right atrial pressure. पिछली slide में हम देख के आ गए हैं. This will cause the reduced pulmonary pressure and this will cause the increased pulmonary circulation. More blood flow, resistance कम हो गया है, pressure भी कम हो गया है और यहाँ पे blood flow जारी हो गया है and pulmonary circulation begins. So increase in the left atrial pressure. Right atrial pressure throughout the fetal life, right atrial pressure में ज़्यादा था. Blood was going through foramen ovale into the left atrium. Now when pressure in the right atrium falls, the pressure in the left atrium increases. This foramen ovale is guarded by a flap. एक फ्लैप होता है which closes, अगर उस साइड पे प्रेशर है valvular action होता है, that flap closes on the left side and there is the closure of the foramen ovale. So increase in the left atrial pressure, it lower pressure on the right atrium compared to the left causes closure of that flap, closure of the foramen ovale, functional closure. ये functional closure सिर्फ बंद हो गया. And throughout life, उसके बाद तो left atrial pressure is always higher than the right atrial pressure. Right atrial pressure is normally is 0 millimeter of mercury, जिसको central venous pressure कहते हैं, और left atrial pressure is 2 to 3 millimeter of mercury. So this difference is sufficient for the functional closure of the foramen ovale. अगर उसमें कोई और permanent closure ना भी हो, fibrosis ना भी हो इस flap की उसके साथ foramen ovale पे, this is sufficient for the closure. लेकिन वो permanent closure भी हो जाती है, fibrosis हो जाती है at the margin. So lower pressure on the right atrium compared to left atrium after birth, this causes the closure of the foramen ovale. And foramen ovale functional closure occurs a few minutes to a few hours after birth. सांस लेने के बाद ये सारे ऊपर वाली changes आती हैं and it causes the closure of the foramen ovale. So two-thirds of the infant's valve flap adheres to the wall and permanent closure in a few months. ये पहले भी मैंने अभी जिक्र किया पिछली स्लाइड में. वहाँ पे फाइब्रोसिस होके ये परमानेंट भी बंद हो सकता है लेकिन जरूरत भी नहीं है. परमानेंट अगर फाइब्रोसिस ना भी हो तो ये इट रिमेन क्लोज, ये वेल्व है उधर बंद पड़ा रहेगा, बिकॉज ऑलवेज थ्रू आउट द लाइफ द प्रेशर ऑन द लेफ्ट एट्रियम इज हायर 2 to 3 millimeter higher than the right atrium और इट इज सफिशिएंट फॉर द functional closure.
परमानेंट क्लोजर में नाटक, जरूरत भी नहीं है। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ऑलवेज 2 to 4 मिलीमीटर हायर ऑन दी लेफ्ट साइड, सो ये उसको बंद रखता है, कीप्स दी वेल क्लोज्ड एंड सो ये। अब आ जाएं डक्टस आर्टरियोसिस, ये वो वेसल जो पल्मोनरी ट्रंक का ब्लड लंग्स में नहीं जा रहा, एंड ये भी मैंने डायग्राम कहीं से गूगल से उठाई है। सो दिस इज दी पल्मोनरी डक्टस आर्टरियोसिस के जरिए से ब्लड जो इधर जा रहा है इसको बंद करने का है। सो डक्टस आर्टरियोसिस अलाउ द ब्लड टू स्किप past the lungs and join up with the partially oxygenated blood that is being pumped out of the left ventricle. Left ventricle से जो blood pump हो रहा है वो इसमें जा रहा है और इसी में join कर रहा है ये blood, deoxygenated blood भी, pulmonary trunk का blood भी जो which is mostly deoxygenated blood, ये भी उसको join कर रहा है। सो क्लोजर ऑफ डक्टस, ये डक्टस आर्टरियोसिस को दिखाने के लिए डक्टस आर्टरियोसिस का ब्लड ये पल्मोनरी फल में जा रहा है, इट इज पासिंग थ्रू दी एआर्टा में जा रहा है। ये डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पे दिखाया है, दिस डक्टस आर्टरियो, ये ब्लू एरो जो दिखाया हुआ है डक्टस आर्टरियोसिस डायग्राम है, डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाया हुआ है, ये दिस इज एंटरिंग इनटू दी एआर्टा। When there is increased systemic pressure, अभी हमने डिस्कस किया, after aeration, after opening of the lungs, pulmonary resistance falls, pulmonary pressure falls, systemic pressure increases. Now the pressure inside the aorta will be more than the pressure inside the pulmonary trunk. Now the blood will come back through the ductus arteriosus. ब्लड तो पहले तो ब्लड उधर क्यों जा रहा था, प्रेशर इन दी लेफ्ट द पल्मोनरी ट्रंक वाज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू एआर्टा के बिना। नाउ द प्रेशर इन दी साइड द एआर्टा इज मोर, आपको पता है एआर्टा का प्रेशर तो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है नॉर्मल 100, और उसमें ओनली 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। सो द प्रेशर, सिस्टमिक प्रेशर इंक्रीजेस एंड पल्मोनरी प्रेशर रिड्यूसेस एंड दिस causes blood flow from the aorta into the ductus arteriosus into the pulmonary blood, पल्मोनरी साइड पे आने लगेगा ब्लड। तो पहले कौन सा ब्लड पास कर रहा था, ये रिमेंबर, पहले ब्लड कौन सा पास कर रहा था, पल्मोनरी ट्रंक का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब कौन सा ब्लड पास करेगा आफ्टर बर्थ, डक्टस आर्टरियोसिस तो अभी जुड़ा हुआ है ना, अभी तो वो एक वेसल है, दोनों को जोड़ रहा है, पल्मोनरी ट्रंक को और एआर्टा को आपस में जोड़ रहा है। ब्लड वाज कमिंग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाज पासिंग फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक इनटू द एआर्टा। अब बर्थ के बाद जब इस साइड की प्रेशर कम हो जाएगा, एआर्टा वाला ब्लड इसके जरिए से पल्मोनरी ट्रंक में आने लगेगा, विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एआर्टा का ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ब्लड फ्लो फ्रॉम द एआर्टा थ्रू this blood has got the high partial pressure of oxygen. ऑक्सीजन का partial pressure उसमें ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का इफेक्ट आपने सिस्टेमिक वेसल पर पड़ा हुआ है, it is a vasoconstrictor. So it will cause high partial pressure of oxygen in this aortic blood now which is passing through the ductus arteriosus. This will cause vasoconstriction. So this is again functional closure. आस्ता बेबी पैदा होता है, ब्लड आता है इसमें आता रहता है, ब्लड इनटू दी लंग्स में आता रहता है, ये ब्लड भी आता रहता है, लेकिन बिकॉज इट कंटेन्स हाई ऑक्सीजन तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वेसल अकर्स एंड ग्रेजुअली इट क्लोजेस। सो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ वास्कुलर मसल कंट्रैक्शन, इट कॉजेस कंस्ट्रक्शन एंड स्टॉपेज ऑफ द ब्लड फ्लो। फंक्शनल क्लोजर हो जाती, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, फंक्शनल क्लोजर विद इन 1 to 8 days, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बंद हो जाते हैं आमतौर, एक दिन के अंदर, 1 day, तो मैक्सिमम एक हफ्ते तक तो बंद हो ही जाता है मोस्ट ऑफ पीपल। अगर ये बंद ना हो तो उसको हम कहते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। उसका फिर एबनॉर्मेलिटी है, उसके फिर बातें हैं साइनोज में भी, जो बातें आगे हम डिस्कस कहीं पढ़ी होंगी आपने या आगे भी पढ़ लेंगे जब, अगर मैं सर्कुलेशन डिस्कस करूंगा। सर्कुलेटरी लेक्चर मेरे ऑन एयर नहीं है, इंशाल्लाह सर्कुलेशन भी शुरू करूंगा तो उसमें आई विल डिस्कस इट, दैट इज द पीडीए से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो फंक्शनल क्लोजर विद इन 1 to 8 days occurs because of this hyperoxia. कंपेयर हाइपरोक्सिया, उसके लिए डक्टस आर्टरियोसिस के लिए दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 90, 92, 94 is sufficient for the closure. It causes constriction of this smooth muscles in the, so permanent closure will occur within a few months. That means it will be replaced by the ligamentum arteriosum. ये ligament बन जाएगा, ये blood vessel obliterate होके ligamentum arteriosum बन जाएगा। So ductus arteriosus closes.
Changes in the heart pressure results in decrease in the blood flow across the ductus arteriosus. ये प्रेशर अभी हमने जिक्र कर दिया ना, ये प्रेशर के एंड इंक्रीज ऑक्सीजन टेंशन, इट कॉजेज द फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू कंस्ट्रिक्शन, ये अब जिक्र करके आ गए हैं. तो रिडक्शन इन द मैटरनल प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द क्लोजर, यानी कोई ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन मदर से में पैदा हो रहे थे विच वर कीपिंग दिस डक्टस आर्टरियोसिस ओपन, जब वो भी खत्म हो गए एंड with the constriction of ductus arteriosus. So ductus arteriosus functionally closes for 82% of the babies by 48 hours. 2 दिन के अंदर 82% of the babies में ये close हो जाता है. और बाकी में भी structural closure with laying down of the fibrin mesh work और fibrin threads या fibrinogen, उसमें fibrin thread बना दें several months में, ये permanently ligamentum arteriosum में convert हो जाता है. So if it remains patent किसी वजह से, so the failure of the closure of the ductus arteriosus, तो उसको हम कहते हैं patent ductus arteriosus, PDA लिखा हुआ है. Prostaglandin produced in the wall of the ductus arteriosus, शायद उस वजह से ओपन रह गया है. vasodilator prostaglandin कुछ प्रोड्यूस हो गए हैं, वो ओपन रह गया है. तो administration of the endomethacin may inhibit the formation of these. तो कभी कभी उधर लोकली कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन मैटरनल, हमने अभी पिछली स्लाइड में जिक्र किया ना, मैटरनल प्रोस्टाग्लैंडिन मेंटेन दी डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट, वो तो खत्म हो गए, लेकिन लोकल अगर प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस बाय द वॉल ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस इटसेल्फ, तो वो उसको ओपन रख सकते हैं. तो एंडोमेथासिन ये ड्रग देखी गई है कि इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज may be used for the treatment of patent ductus arteriosus, ये कर सकते हैं. तो हमारे स्कोप से बाहर की बातें हैं, ये आप मेडिसिन में आगे पढ़ेंगे. क्लोजर ऑफ डक्टस विनोसिस, वो जो लिवर में डक्टस विनोसिस जा रहा है. umbilical cord is clamped now, no blood is coming through the umbilical veins are closed now, and the 1 to 3 are the contraction of the vascular smooth muscle, वहां पे भी होती है, वहां पे भी vascular smooth muscle vasoconstriction of the ductus venosus occurs, और कब, and within 1 to 3 hours, वो भी बहुत very quickly, that is also closed. So increase portal venous pressure from 0 to 6 millimeter of mercury. Systemic blood vessel में जो portal vessels हैं, जो hepatic portal vessel जिसको कहते हैं, वो systemic blood आ रहा है, GIT से जो blood आ रहा है, तो systemic circulation has increased, तो उसमें oxygenated blood जो इसमें आ रहा है, that increase portal venous प्रेशर, वो पहले 0 था, अब 6 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी उसमें हो जाता है. एंड दिस कॉजेज ओपनिंग ऑफ द लिवर वीनस साइनसेस, जो पहले बंद पड़े थे, लिवर में चोर आता, तो ब्लड फ्लो स्टार्ट्स इन द लिवर एज वेल. सो पेटेंट डक्टस विनोसिस इज वेरी रेयर, ये आमतौर पर बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है, और पेटेंट रहना इसका बहुत रेयर है. So closure of the cause of this closure is not very clear. वो सिंपली जो अम्बलाइकल ब्लड आ रहा था वो ना आने से ये बंद हो जाता, और ये जो हेपेटिक पोर्टल वेसल का सर्कुलेशन ज्यादा तेज होती है, प्रेशर, ये भी इसको शायद बंद करने में मदद करता है. एग्जैक्ट काज इज नॉट वेरी क्लियर, जैसे डक्टस आर्टरियोसिस का इज क्लियर. नाउ दी लास्ट अ फ्यू स्लाइड्स अबाउट दी ब्लड सेल काउंट, ये थोड़ा सा एक जिक्र, 2 स्लाइडें हैं बस, ये देख लें तो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह. तो ब्लड सेल काउंट जो है ब्लड में, 1 डे पहले दिन पर हीमोग्लोबिन इन फीटस इज 21 हमने कहा था, फीटस में ज़्यादा होता है 21 में हीमोग्लोबिन कंटेंट, और हेमाटोक्रिट 61 है, और WBC का काउंट तकरीबन 18,000 है in the fetus. और 1 month के बाद this hemoglobin level is reduced to 14, adult के करीब आ गया, and hematocrit is again toward the adult 43 के करीब हो गया, और WBC count भी 12,000 तक आ गया, नॉर्मल की तरफ आ गया. तो इसलिए बेबी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है. न्यूबॉर्न बेबी उसका हीमोग्लोबिन 21 होता है, 20 होता है, 19 होता है, पहले दिन पर 19 होता है, तो ज्यादा रेड होता है, एंड 1 महीने के बाद उसका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उसकी रेडनेस भी कम हो जाती है. तो 1 month 14 आ जाता है, और 1 साल के बाद उसका हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, पेल लगता है खुराक, तो दी हेमाटोक्रिट भी कम होती है, WBC काउंट भी इस तरह कम हो जाता है. 10 years तक फिर 13, अब वो अडल्ट की तरफ जा रहे हैं. दैट इज हाउ दी ग्रेजुअल ब्लड की. और ये आखिरी स्लाइड है, ये एक एबगॉर
स्कोर है न्यूबॉर्न बेबी का, जो स्कोर के उसकी वायबिलिटी, उसकी कितना वायबिलिटी कितनी अच्छी है, उसके कुछ निशानियां मुकर्रर की हुई हैं गायनेकोलॉजिस्ट ने, या मैं भी जो नियोनेटालोजिस्ट ने। दैट इज साइन, अगर पैदा होते ही हार्ट रेट एब्सेंट है तो उसको तो 0 नंबर देंगे ना, अगर स्लो है, बिलो 100 है तो उसको 1 नंबर देंगे, और अगर नॉर्मल 100 से ज्यादा है बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का हार्ट रेट इज मोर देन 100 है तो उसको 2 नंबर देंगे। इसी तरह रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर एब्सेंट है तो वो तो 0 नंबर देंगे, अगर रेस्पिरेटरी अगर स्लो इरेगुलर है तो फिर उसको 1 नंबर देंगे। अगर गुड क्राइंग है, जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ओपनिंग ऑफ द लंग में, गुड क्राइंग है उसको इमीडिएट क्राइंग को 2 नंबर दे देंगे। और मसल टोन उसकी लिम्स को देंगे, लिम्प है तो उसको 0 नंबर देंगे। फ्लेक्शन, अगर उसके बॉडी फ्लेक्स रहती है, ज्यादा फ्लेक्स, बेबी इज फ्लेक्स्ड, यूट्रस में भी फ्लेक्शन मसल्स आर मोर पावरफुल। फ्लेक्शन अगर पावरफुल है तो उसको एक फ्लेक्स में सम फ्लेक्शन मौजूद है तो उसको 1 नंबर देंगे। अगर एक्टिव है, मूवमेंट अगर अच्छी है एक्टिव, तो उसको 2 नंबर देंगे। इसी तरह रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, अगर उसको मारें कोई रिस्पांस न दे तो 0 है, कुछ रिस्पांस दे तो उसको अच्छा रिस्पांस दे, मारने पे कफ करने लगे उसको अच्छा रिस्पांस दे, स्टिमुलाई पे करने, क्राइंग कर तो उसको 2 नंबर देंगे। और आखिरी बात, कलर उसका ब्लू पेल है तो 0 नंबर देंगे, बॉडी पिंक है तो 1 नंबर देंगे, कंप्लीटली पिंक है, पूरा बॉडी उसकी अच्छी तरह पिंक है तो उसको, तो ये 10 नंबर, 5 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नंबर अच्छा वाइबल बेबी है, या ये इसको इसी तरह नंबर देंगे। तो ये एबगोर स्कोर है कि बेबी की वाइबिलिटी कितना अच्छी उसकी वाइबिलिटी है। तो ये अगर ये 0 है तो डेड बेबी है, तो डेड बेबी है। So that's all about this circulatory adjustment. With that, we come to end of the physiology of reproduction. Or inshallah, next videos I'm thinking to upload about the physiology of special senses. हम इसको आई और ईयर और टेस्ट स्मेल को हम डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो होप यू आर फॉलोइंग मी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट सेक्शन में क्वेरीज डाल दें, क्वेश्चन डाल दें, आई विल ट्राई टू आंसर। और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें उसका भी, मेरा सदका जारिया को लोगों में फैलाएं और आपका भी सदका जारिया होगा लोगों को। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।